اصل میں ذریعہ ہاشمی فوت ہو چکے ہیں. اصل میں ذریعہ ہاشمی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں. یہ سب بالکل ٹھیک ایک دوسرے کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, یہ واقعی اپنے عقیدے کی لینس سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے. تحقیق کے سفر میں آپ آزاد ہوتے ہیں. جیسے ہی ذریعہ جاگے گا تو کہے گا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اتنے ٹھیک رستے پہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری تیسری چوتھی جنریشن بھی نیک رستے پہ چل رہی تھی, مجھے تو وہ بچے نظر تک آ گئے ہیں کیا ہیں. ویسے تو ہماری روحیں زمین سے پہ آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھیں, اور پھر جب ہماری دنیا سے یہ انتقال ہوگا تو روح عالم برزخ میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن نیند کے درمیان جو موت صغریٰ ہے اس وقت جو روح پرواز کرتی ہے, روح تو نکل گئی, تو اب ارواح سے وہ آ چکی ہے, برزخ میں ابھی اس نے جانا نہیں ہے. تو اس دوران اس کا کہاں قیام ہوتا ہے, وہ جتنی دیر کے لیے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا عالم ارواح, عالم ارواح کوئی ایک مقام نہیں ہے. اچھا, یعنی اسپیس پہ میجر نہیں کیا جا سکتا, وہ ٹائم میں ڈھونڈا جا سکتا. اچھا, ٹائم میں ڈھونڈا جا سکتا, اسی لیے اس کو عالم ارواح کہہ رہے ہیں. وہ وقت تب ایگزسٹ کرے گا جب ارواح اپنے بدن سے جدا ہو جائے گی اور موت سے قبل جدا ہو جائے گی. موت کے بعد تو اس کا سفر ہی برزخ ہے اور آگے حشر ہے. اچھا, موت سے پہلے جب وہ جدا ہوگی, جب میں سوؤں گا تو عالم ارواح ریکریٹ ہو جائے گا. ہم جب نیند میں لوگ ہوتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں والدین اگر حیات نہیں ہیں, کوئی بہن بھائی کوئی دوست, اب موت کے بعد والی جو روح ہے وہ چلی گئی برزخ میں. ٹھیک ہے, اور جو موت صغریٰ ہے اس کی جو روح ہے وہ چلی گئی ارواح میں. ٹھیک ہے, عالم ارواح میں. لیکن جب وہ نیند کی حالت میں ان اپنے فوت شدگان کو دیکھتا ہے یا ان سے ملتا ہے, تو یہ تو دو ڈفرنٹ ٹائم زون کے اوپر ہیں یا دو ڈفرنٹ ڈیسٹینیشن پہ ہیں, یہ کیسے مل لیتے ہیں؟ کتنے مزے کا سوال. اب میرے پاس ایک بلیک بورڈ ہوتا ہے نا, تو میں آپ کو یہ جو گورو نے آج کل سائنس نے ٹائم ڈائلیشن اور ٹائم بینڈنگ کی تھیوری نکالی ہے نا, آپ نے وہ بڑی خوبصورتی سے سوال میں ڈال دیے. کیسے؟ عالم ارواح میں وہ روحیں بھی موجود ہیں جو آج سے کوئی 200 سال بعد آنی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, یہاں تک ایگری, جو 200 سال بعد آنی ہے. عالم برزخ میں وہ روحیں بھی موجود ہیں, سمجھنی اب آپ نے بات یہاں ٹیکنیکل ہونا چاہیے, جو آج سے 200 سال بعد مرنی ہے. اب کمپلیکیٹ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, سمجھ آ, یہ ٹرانزیشن ہے, آنی ہے, ایک ان کی پیدائش ہوئی, پھر دوبارہ پھر وہ جائیں گی, اور وہ 200 سال کا پیریڈ ہے. نہیں, میں ریپیٹ کرتا ہوں. میری روح برزخ میں ابھی ایگزسٹ کرتی ہے, میں مر چکا ہوں. 3 سٹیجز ہو گئی نا, ارواح سے نکلی, دنیا میں آئی اور برزخ میں چلی گئی. اس سارے سپین کو ہم لے رہے ہیں زندگی, اس کو ہم کہتے ہیں زندگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی قید میں ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو وقت کی قید سے جدا کرتا ہوں, اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم جب شب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ وسلم کو جنت میں لوگ دکھا رہے ہیں, جہنم میں لوگ دکھا رہے ہیں. کون لوگ؟ جو آ کے مر چکے ان کے دور سے پہلے, اور جو آ کے مرنے ہیں ان کے دور کے بعد. ٹھیک ہے, وہ سب ایک جگہ کیسے پائے جاتے ہیں, جبکہ وہ ایک اور جگہ پہ ابھی کچھ ان میں سے ہیں, کچھ قبروں میں ہیں, کچھ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. رائٹ, اس کا مطلب ہے یہ 2 لوگ ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. 2 وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میں واپس آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں, تو دونوں ریلیٹ ہو جائیں گے. شب معراج والی اس ریفرنس سے کیسے؟ ذریعہ ہاشمی آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے, اصل میں ذریعہ ہاشمی فوت ہو چکے ہیں. اصل میں ذریعہ ہاشمی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں.
तभी तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत में देख लिया था. मैं खुश गुमानी रख के जन्नत का रेफरेंस दे रहा हूँ. अल्लाह कभी भी मुझे या हमारे बच्चों को, किसी को हम में से जहन्नुम में ना डाले. दुआ करने में क्या हर्ज है, जानना तो है लेकिन दुआ करने में क्या हर्ज है, अल्लाह ताला कबूलियत की घड़ी होती है. आका अलैहिस्सलाम ने जो लोग जन्नत में देखे हैं वो मौत से जाने के बाद देखे हैं, तो उनमें मैं भी था. तो इसका मतलब है ज़रियाब हाशमी मर चुका है उस वक्त के लिए जिस वक्त पे जन्नत भरी हुई है. आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कैद से आज़ाद करके शब मेराज पे वो वक्त भी दिखा दिया. अब आप पॉइंट समझिएगा. आका अलैहिस्सलाम वक्त से डिटैच किए गए हैं और वक्त से मुबर्रा एक ऐसी जगह पे, ऐसे मकाम पे लेके गया है अल्लाह ताला उनको कि उनको जन्नत में जब लोग दिखाए तो आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत वाले लोगों को पहचाना भी. सो के वापस आके उनको नाम ले लेके बताया कि मैंने फलां को जन्नत में देखा, अपने मेरे घर के साथ फलां का घर देखा, ये देखा. वो जो भी हयात है. अब कहने का मतलब क्या है, मैं और आप असल में जा चुके हैं. चूंकि हम इस वक्त की कैद में हैं तो जब तक हम वो सारा मंजर देखेंगे नहीं और अपनी अपनी मौत देखेंगे नहीं, तब तक हम इस वक्त की कैद से आज़ाद नहीं होंगे. असल में ये सारे मामलात कब के हो चुके, तभी तो जब कुरान पाक में अल्लाह ताला खोल खोल के सब कुछ बयान करते हैं कि और उस दिन हम ये करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, जलाएंगे ये, तो वो इतने वसूख से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं नजर आ सकती ये चीज़. अल्लाह ताला तो वक्त की कैद से, हर कैद से आज़ाद है. वो देख के बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे. अब इसको ये कॉम्प्लिकेट हो गई है बात थोड़ी सी, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ. जैसे ही ज़रियाब हाशमी सोता है तो उसकी रूह निकलती है बॉडी से और वो इन 3 मकामात में से किस मकाम को विजिट करती है, ये उस लम्हे की अल्लाह ताला की दी हुई इजाज़त के ज़ुमरे में रहते हुए उसकी गिरफ्त है. नेक रूहें, नेक लोगों की रूहें वाक़यतन किसी भी मकाम पे, नींद में किसी भी मकाम पे जाने की इजाज़त होती है नेक लोगों की रूहों की, जो सो रहे जाग रहे हैं और जन्नत से होके आ रहे हैं, सो रहे जाग रहे हैं, जन्नत से होके आ रहे हैं, जन्नत में कुछ देख के आ रहे हैं. ये उनकी अरवाह को लिबर्टी है. जैसे हमने पिछले चैप्टर में हम जब पहले इकट्ठे हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल क्या मानता है, हिंदुइज्म क्या मानता है, बुद्धिज्म क्या मानता है, तसव्वुफ क्या मेरा काम है आप तक तहकीक सामने रखना. मैं किसी भी चीज़ पे अपनी राय आपको नहीं दे रहा हूँ. ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इन तमाम उलूम से अख्ज़ करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ. इसलिए इन तमाम उलूम की रोशनी में रूहों के पास जो एक्सेस है, तसव्वुफ कहता है कि रूहों के पास जो एक्सेस होता है वो जिन्नात के पास नहीं होता. कुरान भी ये कहता है कि एक सर्टन लेवल ऑफ आसमान से फरिश्ते पत्थर मारते हैं शयातीन को, वो आसमान पे, फलां आसमान पे नहीं आने देते. अरवाह अलबत्ता ऐसी जगह भी क्रॉस करती हैं जो मिराज के किस्से में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे आका अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ से आगे तो मेरे भी पर जलते हैं, यहाँ से आगे मैं नहीं आपका साथ दे सकूंगा. दैट गोज टू शो कि जो अल्लाह ताला जिस रूह को बुला लेते हैं तो वो ऐसे मकाम पे जाती है जिस मकाम पे फरिश्ते भी नहीं जा सकते. तो जब तसव्वुफ ये गुफ्तगू करता है कि हम जब मकाम लाहूद पे पहुंचते हैं, ऐसा मकाम है जहां फरिश्ते भी नहीं आ सकते, तो ये मौलवी हजरात या किताब के इल्म वाले इनको उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देते हैं. और ये ठीक लगाते हैं. इनकी लेंस से ऐसा ही दिखता है, जैसे उनकी लेंस से आज़ादी दिखती है, इसी तरह इनकी लेंस से एक सर्टन कतकन कैद दिखती है. ये बिल्कुल ठीक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं. आप तहकीक के सफ़र में बहुत इंजॉय करते हैं. आपको सुन्नी को शिया गलत नज़र आता है, शिया को बरेलवी गलत नज़र आता है, बरेलवी को अहले हदीस. ये सब बिल्कुल ठीक एक दूसरे को गलत देख रहे होते हैं, झूठ नहीं बोल रहे होते. ये वाकई अपने अकीदे की लेंस से दूसरे को गलत कह रहे होते. तहकीक के सफ़र में आप आज़ाद होते हैं. आप इन सब को देख रहे होते हैं कि ये उसको गलत क्यों कह रहा है, वो उसको काफिर क्यों बोल रहा है, वो उसको मुनाफिक क्यों कह रहा है, वो उसको फलां क्यों कह रहा है. क्योंकि उसकी किताब, उसका मुतालिया, उसका अकीदा, उसकी परवरिश, उसका सब कुछ एक दूसरे को ऐसे ही दिखा रहा है. जैसे कि ये एक ट्रांसपेरेंट पानी मैं सब्ज रंग की बोतल में डाल दूंगा,
صحیح. لال رنگ کی नीले रंग की डाल दूंगा तो صحیح. दिखने वाले को ये लगेगा कि वो इस रंग के पानी है. صحیح. लेकिन चूंकि वो मैं बाहर से देखूंगा तो मैं हंसूंगा कि नहीं, पानी सब में कॉमन है, इसकी लेंस में हमने चेंज कर दी है जिसके थ्रू आप देख रहे हैं तो आपको वो पानी फलां रंग का दिख रहा है. तो सुन्नी एक रंग का दिख रहा है, शिया एक रंग का दिख रहा है, या यहूदी एक रंग का दिख रहा है, क्रिश्चियन एक रंग का दिख रहा है, मुसलमान एक रंग का दिख रहा है. इसी तरह तसव्वुफ वाले जिस रंग का दिख रहे हैं, तसव्वुफ वाले ये कहते हैं अपने रंग में रहते हुए कि हम जब माशूक से विसाल करते हैं तो हम ऐसे मकाम पे होते हैं जहाँ फरिश्ते भी नहीं आते. तो सही बुखारी भी सही मुस्लिम में भी जब मेराज का किस्सा डिस्कस होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं आका अलैहिस्सलाम से कि यहाँ से आगे तो मैं भी नहीं जा सकता आका. यानी फरिश्तों का की बॉर्डर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फरिश्ता, रूहुल अमीन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे फरिश्ता नहीं कोई जा सकता, सिर्फ आप जा सकते हैं आका. तो वो वही गुफ्तगू अपने लेंस से कर रहे हैं जो तसव्वुफ वाले अपने ऊपर फिट कर रहे हैं. तो ये कहते हैं तुम आम आदमी को ये मकाम दे रहे, तो कहते हैं तुम हमारे गौस को या कुतुब को आम आदमी कह रहे हो, ये आम आदमी नहीं है. तो कहते हैं नहीं तुम नबी के दर्जे पे फाइज कर रहे हो. तो कहते हैं नहीं, हम नबी के दर्जे पे नहीं कर रहे, हम एक आशिक के दर्जे पे कर रहे हैं. इनकी आपस में जंग बड़ी खूबसूरत है, चलती रहती है. कोई ये ना समझे कि मैं इसको सही कह रहा हूँ उसको गलत कह रहा हूँ. मैं दोनों की सोच, दोनों का नुक्ता नजर आपके सामने रख रहा हूं, राइट. लेकिन इस नुक्ता नजर की रोशनी में आपके सवाल का जवाब मिलता है, मेरे सवाल का जवाब मिलता है कि रूह जब बदन से जुदा होती है, चाहे वो मौत सुगरा में हो या मौत कुबरा में हो, उसके पास जो एक्सेस है वो अल्लाह ताला के फजल से या इजाजत से किसी भी लेवल पे जा सकता है. तो मैं सोते ही अपने आने वाले 10 जनरेशन के बच्चे भी देख सकता हूं और वापस अपने आप को जब बताऊंगा अपनी बॉडी को तो वो उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या बता रहा हूं. जैसे मैं अपने फौत हुए बाप या दादा को दिखाऊंगा तो वो मान जाएगा कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद साहब को देखा. जो बच्चे मैंने तुझे दिखाए ख्वाब में, तूने ये क्यों नहीं माना कि वो मेरे बच्चों के बच्चे हैं? क्योंकि वो मेरे डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो मुझे वो आम बच्चे लगे. अनलेस मेरी रूह ख्वाब में बाकायदा तौर पर मुझे इंडिकेशन दे कि ये आम बच्चे नहीं मैं तुम्हें दिखा रहा, ये तुम्हारी चौथी जनरेशन दिखा रहा हूं जो बहुत अच्छे रास्ते पे जाने वाली है, तो एक अच्छा साइन दे रहा हूं कि तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो. उसको मैं इशारे में समझाऊंगा. मैं जैसे ही ज़रियाब जागेगा तो कहेगा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इतने ठीक रास्ते पे था कि मेरे मरने के बाद मेरी तीसरी चौथी जनरेशन भी नेक रास्ते पे चल रही थी. मुझे तो वो बच्चे नजर तक आ गए हैं. क्या है ये, क्या हो रहा है कि वो ट्रांसलेट हो गया ख्वाब इनटू माय डायरेक्टरी इन अ वे दैट आई अंडरस्टूड इट. कितनी दफा होता है मुझे ख्वाब समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ उसकी ताबीर किसी से पूछूं या ताबीर फरोलूं किताबों में. ये वो रेल्म है जहां पे रूहें ट्रेवल करती हैं उतना जितना अल्लाह ताला रूह को इख्तियार देते हैं उसकी नेकी या उसकी उस ग्रेटर तस्वुर की रीच के लिए. अल्लाह ताला जब देखते हैं कि ये किस मकसद से सोता है और किस मकसद से जागता है, तो अगर उसका मकसद अल्लाह ताला के उस बड़े मकसद के करीब पहुंचता है, चाहे वो किसी भी रुख से हो, चाहे वो मुजाहिद है, चाहे वो मुबल्लिग है, चाहे वो मुअल्लिम है, वो अल्लाह ताला ने तो सब रास्ते बिखेर दिए कि पहुंचना तुमने एक रास्ते पे. तो होता क्या, जब ये शख्स सोता है तो इसके तसव्वुर में इसकी रूह को वो आज़ादी देते हैं कि अब तू जा, ताकि तू जल्दी से जल्दी उसको वो साइंस दे और जल्दी से जल्दी वो मनाजिल तय करे और वक्त ना ज़ाया करे. अच्छा,